ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ انتخابات کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی حکومت، صادق سنجرانی، سینٹ سیکریٹریٹ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ یوسف رضا گیلانی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ معاملہ اسمبلی کارروائی سے متعلق نہیں، چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کوئی مخصوص قانون نہیں ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر ووٹ نہیں دے سکتا مگر یہاں پر ووٹ دیا گیا۔ ہم نے پارلیمنٹ کی کسی کارروائی کو نہیں بلکہ صرف چیئرمین سینٹ الیکشن چیلنج کیا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر ووٹ نہیں دے سکتا مگر یہاں پر ووٹ دیا گیا۔ 7 مسترد ووٹ پر سوال کیا گیا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے جواب دیا کہ عدالت جائیں۔ عدالت نے سماعت 27 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اور اب بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ کورونا کی تیسری لہر کا ایک اور خوفناک دن۔ وائرس سے 24 گھنٹے میں ریکارڈ 135 مریض انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹے میں 48,092 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 4,681 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 9.73% رہی۔ کورونا کی تیسری لہر کے وار تیز۔ وائرس سے 24 گھنٹے میں ریکارڈ ہلاکتیں، 135 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ملک میں وبا سے اب تک مجموعی اموات 15,754 ہو چکی ہیں۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے میں 48,092 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 4,681 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 9.73% رہی۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز 76,757 ہو گئے ہیں۔ وائرس میں مبتلا 3,645 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 4,216 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے۔ اور کورونا کی بڑھتی ہوئی شدت کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں آج سے SOPs پر عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افطار سے رات 12 بجے تک کھلی جگہ پر کھانے کی اجازت ہوگی۔ بازار سحری سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ہر طرح کی انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی ہوگی۔ NCOC کا جائزہ اجلاس 10 رمضان کو دوبارہ ہوگا۔ کورونا کی تیسری لہر میں شدت۔ NCOC کے خصوصی اجلاس میں رمضان المبارک کے لیے SOPs جاری۔ NCOC کے اعلامیے کے مطابق رمضان المبارک میں بازار سحری سے شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ افطار سے رات 12 بجے تک باہر کھانے کی اجازت ہوگی۔ کھیلوں کی سرگرمیوں سمیت انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایمرجنسی کے علاوہ غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ رمضان میں رش سے بچنے کے لیے اضافی ٹرینیں چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریلوے کو 70% مسافروں کے ساتھ چلایا جائے گا۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ اندرون شہر ٹرانسپورٹ 50% مسافروں کے ساتھ چلے گی۔ مزید اقدامات کے لیے اجلاس 20 اپریل کو ہوگا۔ NCOC کے مطابق سینما گھر اور مزار مکمل بند رہیں گے۔ نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی ہوگی۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں سیاحت کے لیے سخت SOPs برقرار رکھے گئے۔ مختلف مقامات پر ٹیسٹنگ پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ SOPs سے متعلق NCOC کا جائزہ اجلاس 10 رمضان کو ہوگا۔ صوبے چاہیں تو SOPs کے حوالے سے مزید سخت اقدامات کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 88,000 سے زائد بزرگ افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ رمضان المبارک میں بھی ویکسین لگانے کا عمل جاری رہے گا۔ پشاور سے مدیحہ سنبل رپورٹ کریں گی۔ رمضان المبارک میں خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں کورونا ویکسین کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بزرگ شہری ویکسینیشن کروانے کے لیے ہسپتالوں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 88,221 بزرگ شہریوں کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے، جبکہ 839 بزرگ شہریوں کو کینسائنو ویکسین کی ڈوز بھی دی جا چکی ہے۔ یہ میری سیکنڈ ڈوز تھی ویکسین کی۔ ایک پہلی ڈوز میں نے لاہور میں کروائی تھی۔ یہ بہت اچھی ہے، یہ پریونٹو میئر ہے۔ کرونا کمپلیکس سب سے بڑا کرونا کمپلیکس یہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے۔ کرونا ویکسینیشن جو ٹائمنگ ہے وہ رمضان کے اس میں ہم نے تھوڑی چینجز کی ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک
एक शिफ्ट होता है और फिर रात के 10 बजे से लेके रात के 1 बजे तक यहाँ पे दूसरा शिफ्ट होता है। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बाइस माहिरीन तिब का कहना है कि वायरस से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। कैमरामैन अरशद खान के साथ मदिहा सुंबल, ARY न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रखेंगे। 64 कनाल अराजी पर 3 मरला स्कीम के तहत 230 घर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। वज़ीर आज़म आज झाल चकियां बाईपास पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। निजी हाउसिंग स्कीम में हेलीपैड और पंडाल तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इम्कान है कि दिन के 1 बजे के करीब वज़ीर आज़म बज़रिया हेलीकॉप्टर पंडाल में पहुँच जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आज़म आज सरगोधा में हज़ारों घरों की तामीर के मंसूबे का आगाज़ करने जा रहे हैं। तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। बैंक तामीराती पैकेज के तहत लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जा दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त उस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सियासी मुखालिफिन जिन्हें लगता था कि इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, वो आज शर्मिंदा हैं। दूसरी जानिब मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म आज सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के घरों का इफ्तिताह करेंगे। अवाम से किए सस्ते घरों की तामीर के वादे की तकमील की तरफ गामजन है। इंशाअल्लाह मुतवस्सित तबके के अपने घर का ख्वाब अब पूरे पाकिस्तान में पूरा होगा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं फवाद साहब, आपको सबसे झूठे वजीर होने का तमगा मिला है। मुबारक हो, आपने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की जेबें भरी। अब तामीराती माफिया की सहूलतकारी जारी है। तामीराती माफिया को NRO और आवाम को कर्ज की आग में झोंका जा रहा है। कर्ज बैंक देंगे, घर गिरवी होगा। आपने कौम को क्या दिया? जो अपनी रोटी के लिए परेशान है वो कर्जे पर घर कैसे लेंगे? वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि माली साल के पहले 9 माह में कारों की फरोख्त में 31% इजाफा हुआ। जुलाई से फरवरी तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 7.5% रही। निजी शोबे की जानिब से कर्जों के हुसूल में 34% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट बेहतर ग्रोथ के बायस सरप्लस रहने की तवक्को है। 50 पाकिस्तान के। और अभी आपको ये खबर देंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। आमदन से जायद असासाजात केस से मुतालिक आपको बता रहे कि आज इस पर फैसला महफूज किया गया था, समाअत हुई थी और अब अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को 50 लाख के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म। समाअत की कार्रवाई में क्या हुआ वो भी आपको बताएं कि अदालत ने कहा कि क्या ये काम FBR का नहीं कि वो ज़राए आमदन का हिसाब किताब करें। ये ऑडिट और इंक्वायरी FBR के जरिए क्यों नहीं कराई गई, ये बात FBR क्यों नहीं पूछ रही। मजीद आज क्या हुआ, इस हवाले से आबिद खान हमें डिटेल्स देंगे। बताइएगा आबिद। बैंक ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जमानत मंजूर करते हुए 50 लाख के 2 मुचल के जमा कराने का हुक्म। डोगर की सरबराही में 2 रुपये बैंक ने जो है वो के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ऐसा महसूस कर रहा सुना शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासे केस में जो है अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते 50 लाख के जमा कराने का हुक्म दिया है। नायब प्रोसिक्यूटर ने आज अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए अदालत को ये बताया था कि 22 से 7 अरब रुपए कि जो है वो टीटीस पाकिस्तान आई और शहबाज शरीफ फैमिली के जो है वो अकाउंट्स में आई। ये तमाम लोग जो है वो शहबाज शरीफ के बेनामी दार थे क्योंकि उनके अपने कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ये टीटीस वापस से भिजवाएगी जिसका कोई जरिया समझ नहीं आ रही थी और आज तक ये पता नहीं कि टीटीस क्यों भिजवाएगी। अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि आज ही वो मचल के जमा कराएंगे तो क्या आज ही रिहा हो जाएंगे? जी बिल्कुल जी, चूंकि अभी तो ये शॉर्ट जजमेंट जो है आई है, अनाउंस किया है, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। इसके बाद जो है अदालत तहरीरी जो है वो फैसला जारी की कि उसकी मुसद्दिका कॉपी लेने के बाद जो है वो मुचल के जमा कराए जाएंगे और उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ की रिहाई की रोकथाम जारी और उनका रिहाई का जो है वो अमल मुकम्मल किया जाएगा। तकरीबन 7 माह से शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में गिरफ्तार है। 28 सितंबर
2020 को जो है लाहौर हाई कोर्ट में अपनी जमानत जमानत वापस लेने पर और खारिज होने पर जो है लैब ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो जिस्मानी रिमांड पर है। इस वक्त वो जुडिशल रिमांड पर है और अदालत ने जो है अब आज की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 50 लाख के 2 जमानती मुचल के जमा कराने के एवज शहबाज शरीफ को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, और साथ में जरा ये भी वाजे कीजिएगा कि क्या इसके अलावा कोई और भी केस है? शहबाज शरीफ के खिलाफ इससे पहले आशियाना रमजान शुगर मिल्क केसेस थे, जिसमें अदालत पहले उनकी जमानत मंजूर कर चुकी है। अब जो है वो आमदन से जायद असासे केस थी, जिसमें अदालत ने आज शहबाज शरीफ की ये जमानत मंजूर कर दी और 7 माह के बाद अब शहबाज शरीफ को जेल से रिहाई नसीब होगी। आज नायब प्रोसिक्यूटर का यही कहना था कि शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त जमानत में अपनी बीमारी का जिक्र किया कि वो बीमार है, उनका इलाज बाहर कराना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट साथ नहीं लगाई जिसके जरिए मालूम होता है कि उनका जेल से बाहर आकर इलाज कराना जरूरी है। उनका ये कहना था कि अदालत जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करे, क्योंकि जेल में जो है वो शहबाज शरीफ को प्रॉपर इलाज की सहूलत दी जा रही है। इस मौके पर जो है वो अदालत ने भी ये इस्तफसार किया कि आया ये काम एफबीआर ने क्यों नहीं किया, अगर इनके असासे एकदम बढ़े और इन्होंने इनकी आमदन जो है इनके जराए आमदन जो है इनके असासों से मुताबिक नहीं रखती थी, तो इस पर एफबीआर ने क्यों एक्शन नहीं लिया, उसने इंक्वायरी क्यों नहीं किया, ये काम एफबीआर का नहीं था। तो नया प्रोसिक्यूटर कहना था कि वो तो सिर्फ ऑडिट की हद तक ही सब कुछ कर सकते हैं, हमने इसका क्रिमिनल जो एस्पेक्ट है अवामी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल है, उस हवाले से जो है वो रेफरेंस दायर कर रखा है, जो तकरीबन 7 अरब रुपए का है। उनका ये भी कहना था कि 7 अरब तो सिर्फ वो है जो सामने नजर आ रही है। अच्छा, आबिद हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। आपको भी बताते चलें दोबारा एक दफ़ा फिर से, आमदन से ज़ायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ को 50 लाख के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म, मचल कर जमा कराने के बाद उनकी रिहाई का अमल फिर शुरू होगा। जी हाँ, आज लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासा केस में दरखास्त जमानत की समाअत हुई। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने इस हवाले से दलाइल भी दिए कि शहबाज शरीफ ने 1990 में 14.865 मिलियन के असास से डिक्लेयर किए और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। 50 लाख के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में मजहबी जमात के कारकुनान का धरना कराची और रावलपिंडी से खत्म करा दिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए पिंडी में 100 और कराची में 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल में भी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई। लाहौर के 6 मकामात पर और हैदराबाद में धरना जारी है। मुल्क में मजहबी जमात के कारकुनान का एहतजाज और धरना कहीं खत्म करा दिया गया, कहीं जारी। लाहौर में फिरोजपुर रोड समेत 6 मकामात पर धरना, जगह जगह शदीद ट्रैफिक जैम, शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में दर्ज FIR में साद रिजवी, एजाज रसूल और मोहम्मद कासिम समेत दीगर रहनुमाओं को नामजद कर दिया गया। रावलपिंडी में लियाकत बाग चौक पर धरना देने वालों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का एक्शन। मरी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल में पुलिस ने 24 घंटे से बंद सड़कें खुलवा दी। दौरान ऑपरेशन मुजाहिरीन के पथराव से DPO साहिवाल समेत 51 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज के दौरान हंगामा आराई और पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 97 जख्मी हुए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जारी एहतजाज खत्म करा दिया गया। शाहराह फैसल, स्टार गेट, बल्दिया टाउन 4 नंबर, कोरंगी पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई। 16 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में हैदर चौक पर ताहाल धरना जारी है। शुरका ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी है। लाहौर में मजहबी जमात के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान कशीदगी में कदरे कमी आई है। शाहदरा मोड़ पर पुलिस के साथ रेंजर्स ने भी कंट्रोल संभाल लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर खान से। जी बाबर। बिल्कुल जी, पीर के रोज़ से मजहबी जमात और इंतज़ामिया के दरमियान जो हंगामा राई का सिलसिला जारी था, अब उसकी शिद्दत में कमी आती जा रही है। इस वक्त मैं लाहौर के शाहदरा चौक में मौजूद हूँ, जो 2 रोज पहले मैदान जंग बना रहा। ये देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है क्योंकि शदीद पथराव किया गया था। अब यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस ने अपनी पोजीशनें संभाल ली है। पीसफुल माहौल है, ट्रैफिक आ जा रही है। दाखिली और खारजी रास्तों पर इस वक्त रेंजर्स और जो पुलिस उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला हुआ है और बिल्कुल ट्रैफिक इस वक्त अपनी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। जी
रावलपिंडी इस्लामाबाद में जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, ताहम शमशाबाद से फैजाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक। जी हाँ, आज यकम रमज़ान सहरी के वक्त पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। शदीद शेलिंग और लाठी चार्ज और पथराव का तबादला रहा, झड़पें रही, दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के 30 से ज़ायद जवान जख्मी हुए। मरी रोड पे इस वक्त और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल है। शमशाबाद पब्लिक पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हो, कंटेनर्स बदस्तूर लगे हुए हैं। यहाँ से आगे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद फैज़ाबाद के लिए मरी रोड जाता है, जो बदस्तूर बंद है। इस मकाम पे रुकावटें खड़ी की है, लेकिन डाइवर्जन दी गई है डबल रोड पर, यानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जाना चाहते हैं वो यहाँ से आके डबल रोड से बिल्कुल आईजेपी रोड और आईजीपी रोड से 7th और 9th एवेन्यू तक रसाई हासिल कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जुज़वी तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया, लेकिन शमशाबाद के मकाम पर और फैज़ाबाद के मकाम पर अभी भी रुकावटें मौजूद हैं, कंटेनर्स मौजूद हैं, रास्ते बंद रखे हुए। जी, अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब से चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी की क़यादत में उलमा की मुलाकात हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर उलमा की शरपसंद अनासर के खिलाफ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चौधरी सरवर कहते हैं कि हुकूमती इदारे शरपसंद अनासर को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। किसी को मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। किसी पार्टी को हक नहीं कि वो दूसरी पार्टी को शो कॉज दे। मौलाना साहब जो कह रहे हैं पहले करते तो पीडीएम नहीं छोड़ते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला कहते हैं पीडीएम टूटी नहीं है, इख्तलाफात हुए हैं, उम्मीद है फजलुर रहमान मामला हल कर लेंगे। गलती हुई है माफी मांगे, मामला हल करें। नैब का मामला सेनेट में उठाएंगे, कानून साजी करेंगे। जजेस को भी पता चल गया है कि नैब किस किस्म का इदारा है। किसी पार्टी को ये हक नहीं है कि वो किसी पार्टी को शो कॉज नोटिस दे। जिसने भी डिसाइड किया पीडीएम में, ये बिल्कुल गलत था। जो आज मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर यही बात ये उस वक्त करते, आज ये नौबत नहीं आती कि पार्टियां पीडीएम को छोड़ के जाती। मुझे पूरी उम्मीद है विद मौलाना साहब एक्सपीरियंस ही विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस इशू। मैं नहीं समझता पीडीएम टूटी है, कुछ इख्तलाफात हुए, उन इख्तलाफात के वैलिड रीजन है। मौलाना साहब को इसको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर अपॉलॉजी भी देनी है तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आपसे गलती हुई है आप अपोलोजाइज करें, इसको रिजॉल्व करें। जजों को भी आइडिया हो गया है कि नैब किस किस्म का इदारा है। लोग इनकी वजह से सुसाइड करते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है। करप्शन के पीछे जाने के ये बिजनेसमैनों के पीछे हैं, कहते हैं प्ली बार्गेन करें। हम ये चीजें टेकअप करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ मामला, और नैब पे इवेंचुअली हम लेजिस्लेशन भी करेंगे। और पीडीएम के साबिक साथी आमने सामने आ गए। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कमर जमान कायरा ने कहा कि फजल रहमान से एहतराम का रिश्ता ना होता तो बताता कौन किसका बाप है और कौन किसका साथ था। मोहम्मद जुबैर बता दें कि वो कौन सी डील थी जिसके लिए उन्होंने मुलाकातें की। मोहम्मद जुबैर ने जवाब दिया, ये सवालात आप जब पीडीएम में थे तब पूछते। आपकी हरकतों से कारकुन नाराज हैं, हमने कोई डील नहीं की। फजलुर रहमान साहब का एहतराम का रिश्ता ना होता तो मैं पता नहीं किसको बताता कि किसका बाप कौन है, कौन किसका बाप था। ये छोड़ दो, लेकिन ये कौम को बता दो कि वो क्या था, वो कौन सी डील थी जो मैच्योर नहीं हुई और जिसके बाद ये सारी लड़ाई होगी। बता दो कौन। तगत भी मैंने कहा था, उसके बाद भी कहा है, और आपने एग्री भी किया था हमारी बात से कि हमारी कोई डील थी नहीं ना, कि जिसके लिए मैं गया था और वो डील नहीं हुई, और फिर जो भी आप उससे अखज़ कर रहे हैं। अभी जुबैर साहब के जेस्चर से ये जो नीजाक रिएक्शन आया है कि जी हम तो आपको धक्के दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फिर भी आप कहते रहना है। कायरा साहब नाराज हो रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी का एक कारकुन अगर होगा तो वो परेशान होगा कायरा साहब आपकी बातों से कि आप हैं मेंबर या नहीं है पीडीएम का। जब ये कहा कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी आए तो आपको पता है वो नहीं आएगी ना। पीडीएम बनाते वक्त आप ये सवाल पूछते, और हमें सेटिस्फाई करना चाहिए था। आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करना चाहिए था। अब जब राय जुदा होगी तो आप पूछ रहे हैं कि जी आप क्यों कहते हैं।
नून लीगी MNA जावेद लतीफ कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। सेशन कोर्ट में रियासत मुखालिफ बयानबाजी केस में जावेद लतीफ की रिपोर्ट पेश कर दी गई। जावेद लतीफ के वकील ने कोरोना रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि रिपोर्ट मस्बत आई, जिसके बाद जावेद लतीफ ने खुद को करंतना कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं लग रही, अगर गलत हुई तो सजा भी हो सकती है, जिस पर जावेद लतीफ के वकील ने कहा कि इसकी तस्दीक करवा ली जाए। अदालत ने हिदायत की कि कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पेश की जाए। अदालत ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए अबूरी जमानत में तौसी कर दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान की जो है बड़े खलूस के साथ, नेक नीयती के साथ जो है उन्होंने खिदमत की और उनके दौर में एज चीफ मिनिस्टर उनके कलम से 3150 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो है उनके ऊपर जो है वो अमल हुआ और 3150 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई इस सूबा पंजाब की। किसी एक मंसूबे के ऊपर ये नैब जो कि एक गुमाश्ता अदारा है और इसको सिर्फ इस वक्त शहजाद अकबर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अदारा है, ये कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है। एक प्रोजेक्ट के मतलब जो है वो 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सका मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने इस दयानत के साथ, इस अमानत के साथ और इस मेहनत के साथ जो है पंजाब की जो है वो खिदमत की है। आज उन्हें इंसाफ मिला है, लेकिन ये इंसाफ 7 माह बाद मिला है। वो 7 माह से अपनी उम्र के इस हिस्से में और कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद जो है वो जेल में उन्होंने गुजारे हैं। उससे पहले भी इतना अरसा जो है वो जेल में जो है वो रहे। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया का भी कि अब भी वो जजेस जो हैं वो कौम की उम्मीद हैं, वो इस मुल्क की, इस सूबे की उम्मीद हैं जो मेरिट के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है वो आज़ाद फैसले करते हैं। अगर इंतकाम इसी तरह से यकतरफा तौर पे जारी रहे, अगर शहजाद अकबर जैसे लोगों को और इमरान खान न्याजी जैसे लोगों को जो इंतकाम और नफरत की आग में गर्क हो चुके हैं, अगर इनको खुली छुट्टी मिलती रहे और इनका हाथ रोकने के लिए ऐसे आज़ाद फैसले करने वाले जजेस मौजूद ना हों, अदलिया मौजूद ना हो, तो फिर ये मुआशरा जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाए, ये मुआशरा जो है ये इंतशार का शिकार हो जाए। अगर ये मुआशरा कायम है तो फिर उस इंसाफ की वजह से कायम है जो मिल रहा है। लेकिन ये इंसाफ जो है ये इतनी ताख़ीर से भी मिला है, हम फिर भी जो है वो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बाज़ मज़लूमों को ये 3 साल बाद और बाज़ को जो है वो पौने 2 साल और 5 साल बाद जो है ये इंसाफ मिला है। जो राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के मदरसे में उस्ताद का बच्चे पर तशद्दुद, बच्चे का वालिद मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गया। बच्चे ने कहा कि गलती पर उस्ताद ने तार से मारा, फिर नाजिम ने भी मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। मेरे सबक में एक लड़की आ गई थी, उस पर पहले मारा, फिर नाजिम साहब के पास भेज दिया, उन्होंने भी कस के मारा, मैं उधर ही गिर गया था, बेहोश हो गया था। सुबह बच्चा जाता है मदरसे, तकरीबन 8 बजे का टाइम है और शाम को 5:30 बजे बच्चे की छुट्टी होती है। मैं तो जब शाम को बच्चे को लेने के लिए गया हूँ तो बच्चा जब मेरा मदरसे से वापस आया है बाहर, मैंने बच्चे को देखा तो उस वक्त बच्चे ये यहाँ पर लगी हुई थी और बाजू पे। तो मेरी बात हुई उनसे, वो जो नाज़िम है उनसे, तो उन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं है तारिक भाई, गलती से हो गया ये वो मामला। मैं बच्चे को घर ले गया। जब घर गया है बच्चे ने जाके वहाँ कपड़े वगैरह इसकी वालिदा ने बदलवाए, तो उसका जो पीछे पीठ का हाल आपने अभी देखा ही है। तो इसको बहुत बेदर्दी से इन्होंने मारा है। जो मदरसे का नाज़िम है, सैयद मुनीर नाम है उसका, वो और जो एक उस्ताद रखे हैं इन्होंने नए,
उन उस्ताद का जो है वो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ जो है बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाजार कायम कर दिए। आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर रोज़मर्रा अशिया पर लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया है। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं, जहां शहरियों को खाने पीने की अशिया सस्ते दामों दस्तयाब हैं। रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए जबकि 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि पहली बार सब्सिडी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है और लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। ये गवर्नमेंट को सलूट करता हूँ जनाब, बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा। चीनी बायर 100 रुपए से ज़्यादा बिक रही है, 105-100 रुपए से कम में नहीं है, 100 से ज़्यादा है। यहाँ पे 65 रुपए है और क्वालिटी भी बेहतर है। जबकि खवातीन चीनी के लिए लाइन में खड़े होने पर खफा नजर आईं। लाइन में लग के मिल रही है चीनी, लाइन में लग लो तो मिल जाएगी 2 किलो। ये तरीका इस तरह दे रहे क्या भीख दे रहे हैं हम लोगों को? क्या पहले रमजान बाजार नहीं लगते थे, अब कोई नए लग रहे हैं? सस्ते रमजान बाजारों में दालें, सब्जियां, फ्रूट और मशरूबात भी कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद के बाद भी सस्ते रमजान बाजारों को जारी रखा जाए। कैमरामैन अदनान भट्ट के साथ उल्फत हुसैन मुगल, एयरवे न्यूज, लाहौर। कोयटा में रमज़ानुल मुबारक के आगाज के साथ ही गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। कसाबों ने सरकारी नरखनामे की धज्जियां उड़ा दी। गाय का गोश्त 70 रुपए और दुम्बे का गोश्त 250 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। मंजूर अहमद रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा खुसूसी नरखनामे को कसाई भी खातिर में नहीं ला रहे। गाय का गोश्त 580 रुपए की बजाय 620 से 650 रुपए, जबकि दुम्बे का गोश्त 850 रुपए की बजाय 1100 रुपए फी किलो रोजादारों को बेचा जा रहा है। महंगाई हो रहा है, कोई 650 का बेच रहा है, कोई 600 का बेच रहा है, कोई 700 का बेच रहा है। ये मालूम नहीं है। अल्लाह के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, चलो हमारा तो फिर भी कुछ गुजारा होता है, यहाँ पर लोग पाके करने के मजबूर है। कसाई सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद न करने की वजूहात कुछ यूं बताते हैं। कुछ लेना है सरकारी रेट में आपको दे देता हूँ, लेकिन आप चर्बी नहीं मांगता है, बगैर चर्बी के मांगता है, आडी नहीं मांगता है। वही से 1000 बातें करी। ये बैल जो जबा करती है उसमें कम से कम 25 किलो खाली चर्बी आता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गिरा फरोशों के खिलाफ आज पहले रमजानुल मुबारक से कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। संजीदा लोगों का कहना है कि एक नरखनामा जारी करके हुकूमत बरीउल ज़िम्मा नहीं, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मरबूत निज़ाम बनाना चाहिए। कैमरामैन अमीरुल्लाह मेंगल के साथ मंजूर अहमद, एयरवे न्यूज़, कोयटा। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में माह रमज़ान का इस्तकबाल मजहबी जोश व खरोश से किया गया। दुबई का बुर्ज खलीफा रमज़ानुल मुबारक के हुरूफ से रोशन हो गया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बच्चों ने ड्रम बजाकर रमज़ान को खुशामदीद कहा। उर्दन में मसाजिद और सड़कें बरकी कुमकुमों से सज गईं। और अब कुछ खेल के मैदान से खबरें होंगी। तुर्की के फुटबॉल ग्राउंड में रोज़ा अफ्तार किया गया। दारुल हुकूमत अनकरा में फुटबॉल मैच के दौरान अफ्तार का वक्त हुआ तो मुसलमान खिलाड़ियों ने मैच के वक्फे में रोज़ा खोला और फिर मैच दोबारा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। Keçiören futbolcuları kenarda. Bugün kulübedeki bir diğer kalecisi. Keçiören Gücü'nün bu arada पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। सीरीज किसकी होगी, फैसला सेंचुरियन में होगा। And that is going to be it. There it is. Pakistan win this one. पाकिस्तान 2018 के बाद अवे सीरीज जीतने के लिए बेताब है।
उधर जनूबी अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान को बता दिया अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी वो कमजोर टीम नहीं। Anja Klaas and his young chargers have done superbly well to level the series. वनडे सीरीज के हीरो फखर जमान तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। फखर टांग में एलर्जी के बायस दूसरा मैच नहीं खेल सके थे। You won't be impressed with that start. पाकिस्तान सेंचुरियन में जीता तो प्रोटियाज से रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा, लेकिन सीरीज अपने नाम करने के लिए एक नहीं आखिरी दोनों मैचेस में कामयाबी जरूरी है। अभी बराह रास्त आपको सरगोदा लिए चलते हैं, जहां वजीर आजम इमरान खान वहां पर पहुंच गए हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान सरगोदा पहुंच गए हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि 64 कनाल अराजी पर 3 मरला स्कीम के तहत 230 घर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। इम्कान है कि वजीर आजम इमरान खान यहां पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम आज झाल चकियां बाईपास पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। निजी हाउसिंग स्कीम में हेलीपैड और पिंडाल तैयार कर लिया गया है। तो वजीर आजम इमरान खान इस वक्त सरगोदा पहुंच गए हैं और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen